बोला प्रॉब्लेम नंबर 51 काय करायचं याच्यात बघा. an ammeter okay, an ammeter is to be constructed which can read the currents up to 2 ampere. So current ची maximum value दिली आहे. Okay, so current can be measured up to 2 ampere. If the coil has the resistance of 25 ohm and it takes 1 milliampere of for a full scale deflection, what should be the resistance of the shunt used? बरं, ammeterचं construction कसं असतं? There is a MCG coil. Now to this MCG coil there is a very small resistance is connected in parallel. This small resistance is called as the shunt resistance. Okay, this is what MCG coil. Now here the current is coming as 2 ampere. Okay, now out of that 2 ampere current, here is a junction point. Here it will pass 1 milliampere. So remaining is what? राहिलेलं किती आहे? 2 minus 1 milliampere that will pass through the shunt resistance. Okay, through this resistance. So can you calculate the, can you find out the value of the RS? They are given coil has a resistance of 25 ohm. So this is 25 ohm. So which law we have to use? According to which law we have to solve this question? According to the Ohm's law. क्या बोलता है? V is equals to IR. Okay. अभी यहाँ पे हमने इसको I1 ले लिया, तो ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया, तो ये हमारा R2 हो गया. So you can write what? 1 milliampere, that means 1 into 10 raised to minus 3 into resistance is what? 25, must be equals to what? 2 minus 1 into 10 raised to minus 3 into RS. So this RS we need to find it out. तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली कट हो रहा है, करेक्ट? तो नहीं यहाँ अंदर है. एक मिनट मैंने कट कर दिया. So 2 into 10 raised to minus 3 है ना ये. So this will be what? कितना हो जाएगा देखो ये. So 2 minus 0.001 into RS will be equals to 25 into 10 raised to minus 3. So RS will be equals to 25 into 10 raised to minus 3 divided by, this is extremely small, man. So can you consider this as a 2? Because this is extremely small, na? You can neglect that. Okay, so we will neglect value because it is extremely small. 0.001 means what? It is very small as compared to 2. So you can take it as a 2. So your answer is what? 12.5 into 10 raised to minus 3. So your shunt resistance is what? 0.0125 ohm. Very small resistance, you can see whether it is small or not. Very small. No, sir. If you compare this value with the 25 ohm, it is small, right? चलो, ये हो गया हमारा question number 51. Now 52 you see. To try to solve it, first read that a voltmeter coil has the resistance of 50 ohm. So coil का resistance इधर लिख लेता हूँ G. G कितना दिया है? 50 ohm. सर 500 है. अरे 50.0 दिख रहा है. हाँ. पॉइंट नहीं है क्या? वो ऊपर हो गया पॉइंट थोड़ा. अरे मेरे को इधर से पॉइंट दिख रहा है ऐसा थोड़ा सा, तो आई विल टेक 50. हाँ, ओके. उसका 25-50 इतना रेंज में ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है. वोल्टमीटर कॉइल एमसीजी कॉइल है वो, ठीक है. एंड अ रेजिस्टर ऑफ 1.15 किलो ओम. रेजिस्टर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस इज देयर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसका दिया है 1.15 किलो ओम. तो 1.15 किलो ओम बोले तो 1150, ठीक है.
is connected in series, it can read the potential difference up to 12 volt. तो कितना potential difference measure कर सकता है? Up to 12 volt. If this same coil is used to construct the ammeter which can measure the currents up to 2 ampere, what should be the resistance of the shunt? कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो पहले वोल्ट मीटर का इंफॉर्मेशन दिया है. वोल्ट मीटर में एमसीजी कॉइल का रेजिस्टेंस ये है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है. तो पहले अपन क्या बनेंगे? डायग्राम बनाते. दिस इज एमसीजी कॉइल and it has been connected in series with this R. Okay, so this will make what? Voltmeter. ये voltmeter हो गया. So 50 ओहम और इसका है 1150 ओहम. तो इनका नेट R कितना हो जाएगा? नेट R, नेट रेजिस्टेंस बोलो 1200 ओहम. ओके, बिकॉज दे आर इन सीरीज. अभी ये क्या बोलता है? इट कैन रीड द पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 12 वोल्ट. तो हम करंट निकाल सकते हैं. करंट तो सेम ही जा रहा है ना दोनों में से. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो वी विल फाइंड आउट व्हाट? करंट. सो V इज इक्वल्स टू IR. V दिया है 12 वोल्ट. ओके, सो I विल बी इक्वल्स टू V by R. सो दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ I. I का वैल्यू कितना आएगा बोलो? 12 divided by 1200. So this is what? 1 by 100. So 1 by 100 is what? 1 into 10 raised to minus 2. बराबर है क्या? 1 into 10 raised, हाँ बराबर है, एम्पियर. तो ये हो गया करंट का वैल्यू. ओके, अभी एमसीजी कॉइल इतना ही करंट मेजर कर सकता है. ये ध्यान में रखो. ये किसका वैल्यू है? करंट ऑफ द एमसीजी कॉइल, कॉइल का है. ओके, तो एमसीजी कॉइल इतना ही करंट मेजर कर सकता है. तो हमें कितना करंट मेजर करना है अभी? 2 एम्पियर. तो हम कैसे सर्किट बनाएंगे? एमीटर. एमीटर कैसे बनाते हैं बोलो? ये हो गया एमसीजी कॉइल, राइट? ये क्या हो जाएगा? एमीटर. अरे ये शंट रेजिस्टेंस. सॉरी. हाँ, ये क्या है? इसमें से कितना जाता है करंट अभी? इतना. कितना? 1 into 10 raised to minus 2. So this is the current which is passing through the MCG coil. और टोटल करंट कितना आएगा इधर से? 2 एम्पियर. तो बाकी का इधर से जाएगा. दैट इज व्हाट? 2 minus 1 into 10 raised to minus 2. और ये RS हमको फाइंड आउट करना है. इसका कितना दिया है अभी? 50 दिया है. क्या यार फालतू. वही है. फिर से क्या करने का बोलो? बोलो क्या करने का? V is equals to IR लगाओ. I into this R, I into this R. Okay, so this is I1, this is R1, this is I2, this is R2. You have to find out this. समझ में आ रहा है क्या? अरे तुम्हाला कळतंय का? हाँ I1, हाँ R1, हाँ I2, हाँ R2. काय करणार बोला? 1 into 10 raised to minus 2 into 50 will be equals to 2 minus 1 into 10 raised to minus 2 into shunt resistance. अभी इतना कैलकुलेशन तो करो. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आप 52 क्वेश्चन सिखा रहे ना? 52. हाँ 52. हाँ सर, मेरा 51 पे ही मतलब चल रहा है वो. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आवाज पहले आ रहा है, वीडियो बाद में दिख रहा है. नहीं रे, मैं तो नेटवर्क स्लो रहेगा. 52 चालू है. हाँ वही तो. हाँ मेरा सुबह ऐसे ही रहता है. एक काम कर, तू फिर से ये कर, फिर से ये कर, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री मार. ये प्रॉब्लम रहेगा, नेट का प्रॉब्लम है. ऑनलाइन लेक्चर का सुबह सुबह आमिर को परेशान किया, अभी रोहन को पकड़ा उसने. अभी इधर देखो, इधर ये सॉल्व करो रे तुम लोग. ये कितना आएगा? कितना आएगा? 50 into 10 raised to minus 2 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 2 माइनस ये कितना आएगा? 0.01. ठीक है RS. तो ये कितना आ रहा है यार? 50 into 10 raised to minus 2, 0.01, यानी अगर मैं बोलूँ 2.00 माइनस 0.01, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 1.99 हो गया. तो 1.99 तो 2 ही आएगा. तो 2 ही ले लो इसको भी, क्या है उसमें. ओके, तो ये आएगा 25 पॉइंट कुछ तो आएगा, 25.1 ले लो, इंटू 10 raised to minus 2 इज इक्वल टू RS. सो RS का वैल्यू कितना आ रहा है अभी?
कितना आ रहा है 0.25 0.25 ओहम। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं? हाँ सर। ओके, so this we have completed problem number कितना हो गया अभी 50 कुछ तो हुआ है 52। ठीक है, आंसर देख रहे हैं क्या आप? आंसर भी देखो, आंसर भी चेक किया करो। हाँ सही है। ओके, सो आई चेक द आंसर, इट इज राइट। चलो, अरे आगे वाला 53 देखो। सी द क्वेश्चन नंबर 53, एकदम पांडु क्वेश्चन है, फटाक से बोल दो आंसर। एकदम पांडु क्वेश्चन है, मेरे को आंसर फटाक से चाहिए। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा अभी। अभी कितना सॉल्व करने का? 84 प्रॉब्लम्स है। वी आर क्लोज टू कंप्लीट द प्रॉब्लम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी खाली 30 प्रॉब्लम बचे, 53 तक आ गए हम। ये कौन सा है? ये क्या करने का इधर? ये क्या है? ये क्या है? व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज के ऊपर है ना ये प्रॉब्लम, मीटर हाँ ब्रिज। सर। हाँ हाँ। तो ये तो पांडु प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ तो बोलो, फटाक से बोलो। AB का लेंथ कितना दिया है देखो ना, 40 सेंटीमीटर, यानी ये है ना, ये 40 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। ये टोटल कितना है? 40 सेंटीमीटर। अभी इधर एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, देखो ये 12 ओहम है, ये 8 ओहम है। इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको R1 मानूं और इसको R2 मानूं, तो R1 बाय R2 कितना हो जाएगा बोलो? 8:12, दैट इज 4 2/3 सॉरी 2/3। 2/3 हाँ तो 2/3 सही बात है। तो इधर ये वायर भी 2/3 रेशियो में बटनी चाहिए। कैसे बटेगी? देखो 2 और 3 मिलके कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो इस वायर के भी 5 पार्ट करेंगे, इसमें से 2 पार्ट वायर का ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो 2 पार्ट बोले तो क्या, इसके 5 पार्ट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 8 करो डायरेक्टली, कितना आएंगे? नहीं सॉरी 5 करो, कितने आएंगे? 8 आएगा। 8 एंड तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो 8 को, तो ये 16 सेंटीमीटर आपको किधर मिलेगा? जीरो डिफ्लेक्शन 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड। और यू कैन गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? 24 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड। अरे तुमको समझ में आ गया क्या? कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर। कुछ करने का जरूरत नहीं है कैलकुलेशन भी। तुमको खाली इसको कंपेयर करना है, और इधर का रेजिस्टेंस कम है तो इधर से डिस्टेंस भी कम है, इधर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इधर से डिस्टेंस भी ज्यादा है, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको समझ में आया है? हाँ सर। 54, अभी 54 आप सॉल्व करो, फटाक से मेरे को आंसर दे दो। 54 करो सॉल्व। अभी इसको मैं बताऊंगा नहीं है, और इसके बाद वाला भी कैलकुलेशन भरा प्रॉब्लम है। 55 में करूंगा, 56 आपको करने को बोलूंगा, खाली हिंट दे दूंगा मैं 56 में। देखते हैं कौन करता है। अरे इसका आंसर कितना है यहाँ? अभी इन्होंने तो पूरा ही दे दिया है। अरे इसको क्या हुआ? देखो ये 6 ओम दिया है, ये आर दिया है, आपको आर फाइंड आउट करना है। एबी का लेंथ कितना दिया है रे? 50 सेंटीमीटर। 50। और उन्होंने बोला है कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे आता है? डी पॉइंट पे। एडी का लेंथ दे दिया कितना? 30। ये 30 है तो ये बीडी कितना होगा? 20। बस खत्म है बात। इसका मतलब इधर रेशो कितना आएगा? 3/2।
तो इधर 3/2 आया तो इधर कितना आना चाहिए 6 बाय ये कितना x करेंगे इसको, समझ में आ रही है बात। इसके सामने 3 लिखा मैंने, इसके सामने 2 लिखा, तो अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। 4 इतना पांडु था ना। हम्म चलो आगे वाला करो। अभी आगे वाला भी अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अभी ये डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, आप जरा ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई। आपको आता है कि देखो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले रीड करो उसके बाद एनालाइज करो, देन यू ट्राई टू सॉल्व दैट, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्व कर पा रहे हो? हाँ सर, अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो। पढ़ के मेरे को आपने समझाना है कि ये क्या दिया है और क्या करने का इधर। चलो मैं सॉल्व करूं, शैल आई सॉल्व दैट? यस सर। ओके, तुमको क्या समझ में आया? एक 6 वोल्ट की बैटरी है। हाँ 6 वोल्ट की ये बैटरी इधर, हाँ यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है और वो ये। यूनिफॉर्म वायर से कनेक्टेड है। हाँ और वायर का लेंथ 100 सेंटीमीटर है। हाँ ये भी 100 सेंटीमीटर है। और और ईएमएफ बैटरी का 4 वोल्ट है। हाँ ये बैटरी का, ये तो 6 वोल्ट है ना। हाँ सर। इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 वोल्ट बैटरी का? इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। नेग्लिजिबल। हाँ छोटा वही R 1 0 ओम। है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। दैट मीन्स दिस बैटरी इज विच बैटरी? आइडियल बैटरी। आइडियल आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ही 0 है। ये 4 वोल्ट वाली बैटरी आइडियल है क्या? नो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 1 ओम। ओके, सो दिस इज नॉट आइडियल बैटरी। तो एक आइडियल बैटरी के एक वायर के अक्रॉस एक आइडियल बैटरी कनेक्ट की है, और एक जो पॉइंट है वायर का उससे एक नॉर्मल बैटरी अटैच कर दी है। एंड दिस एंड, ओके, द अदर एंड ऑफ दिस बैटरी इज इन एयर राइट नाउ। तो आपको क्या पूछा है? टेक द पोटेंशियल एट बी इज 0। तो आपको इधर वाला पोटेंशियल क्या लेना है 0, वी क्या लेना है 0। मुझे एक बात बताओ, ये अगर मैं 0 लूंगा तो ये वाला एंड इसका वोल्टेज कितना होगा? ऑब्वियसली कितना होगा 6 वोल्ट होगा। अरे देखो ना, ये नेगेटिव टर्मिनल इट इज कनेक्टेड टू दिस, वी हैव टेकन दिस 0। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू द ए पॉइंट, सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना होगा 6 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपका पहला आंसर, सिंपल। ओके, व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट ए एंड सी? अभी ए का पोटेंशियल हमने दे दिया, अभी सी का कैसे निकालोगे? देखो इधर का पोटेंशियल है 6, आप यहां से इधर आ रहे हो, जब आप यहां से इधर आ रहे हो
तो यहाँ पे यहाँ तक 6 वोल्ट था, लेकिन यहाँ से आप पॉजिटिव से निगेटिव गए, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो बचेगा कितना 2 वोल्ट। अभी यहाँ पे आए 2 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें से तो करंट ही पास नहीं हो रहा है। तो जब इसमें से करंट ही नहीं पास हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, VC का पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट। कितना होगा 2 वोल्ट। जब ये पॉइंट एयर में है तब 2 वोल्ट होगा C का पोटेंशियल, C पॉइंट का पोटेंशियल। आपको ये समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोला? उन्होंने बोला B को 0 ले लो, ले लिया। इसको क्या करेंगे फिर 6 वोल्ट। ऑब्वियसली ये 6 वोल्ट का बैटरी है ना, इसका एक एंड 6 पे होगा, एक एंड 0 पे होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अलोंग दिस वायर, यूनिफॉर्म वायर विल बी व्हाट 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ से जब इधर 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 आएंगे इस एंड पे, तो यहाँ पे होले होले होले, यहाँ स्टार्टिंग में 6 वोल्ट होगा, इधर कुछ 5 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, 3 2 1 और 0 बन जाएगा इधर। Okay, so there is a gradual decrease in the potential along the length of this wire. Clear? अरे ये समझ में आया है आपको? VA 6 वोल्ट आया, 2 वोल्ट आया, तो ये कहाँ तक आया? एक क्वेश्चन तक, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ो इसमें। At which point D of the wire AB the potential is equals to potential at C। यानी अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल हमें पता है, सी का पोटेंशियल कितना है रे 2 वोल्ट। 2 वोल्ट है ना ये। अभी हमें क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। तो तुमको यहाँ का पोटेंशियल डी का वो पोटेंशियल कितना मांगता है फॉर बैलेंसिंग 2 वोल्ट। अरे सेम पोटेंशियल होगा तभी तो बैलेंस होगा ना, होगा कि नहीं? अभी यहाँ से 6 था, कम 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 होते होते किधर तो आएगा 2 वोल्ट। तो लेट दैट डिस्टेंस बी व्हाट x। तुमको समझ में आया है? मैंने x डिस्टेंस एज्यूम किया कि x डिस्टेंस पे फ्रॉम B आई विल गेट द वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। ओके, तो यहां से कितना बचेगा लेंथ? फिर यहां से कितना बचेगा इस एंड से? टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना हो गया 100 माइनस एक्स। AD का कितना हो जाएगा लेंथ 100 माइनस एक्स। और हमने एज्यूम क्या किया, BD is equals to x and x is what? X is the distance at which we will get the balance point। बैलेंस पॉइंट बोले तो मेरे को वायर पे जो पॉइंट मिलेगा उसका वोल्टेज और इधर का वोल्टेज वो सेम रहेगा, यानी 2 वोल्ट का मेरे को इधर पॉइंट मिलने वाला, बैलेंस वोल्टेज। ठीक है, तो अभी तुमको उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि भाई वो पॉइंट किधर है। ओके, यानी एक्स मांगता है उनको। तो एक्स कैसे निकालोगे बोलो फटाक से, कैसे निकालोगे एक्स? कौन बोलेगा? अरे बोलो यार, क्या यार बोलो, क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे? टोटल वोल्टेज कितना है 6 है ना, और हमको 2 वोल्ट पे चाहिए, तो 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 वोल्ट, सही है, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा इधर 2 वोल्ट किधर किस डिस्टेंस पे आ रहा है एक्स पे, और 6 वोल्ट पे कितना डिस्टेंस होगा ये 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/6 इंटू 100 बोले तो 100/3, 100/3 बोले तो 33.33 सेंटीमीटर। So you will get the balancing point from B end at the distance of 33.33 सेंटीमीटर। अरे तुमको समझ में आया है? और अगर आप डिस्टेंस A पॉइंट से कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? If you calculate the balancing length from A point, then it will be what 66.67 centimeter. So you can give the answer in either way, like this way or like this way. अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है तो बोलो, फिर से बताऊंगा। हाँ सर समझ। सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा परत एकदा सांग। हा परत सांगा.
एक मिनट। तभी आप इतने गुमसुम हो गए। मेरी स्क्रीन ही ब्लैक हो रही है सर। अरे हेलो सर। फिर तो पे स्क्रीन की वजह से फिर तो समझ में ही नहीं आएगा फिर। इसमें हेलो सर। पॉइंट बहुत नेसेसरी। अच्छा आ रही है जा रही है। अरे ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आमिर मेरा तेरे को देखो समझ में आया था क्या? सर देखो मेरी स्क्रीन कैसी हो गई है। तेरी स्क्रीन सुबह भी परेशान करती है, अभी भी परेशान कर रही है। एक मिनट, तू भेजा क्या ग्रुप हाँ में? ग्रुप पे भेजा सर। अरे क्या यार, ये क्या है परेशानी बार बार। वाइट बॉर्डर। आज के लेक्चर में सुबह भी परेशानी थी। अरे बाप रे, वही सुबह वाले ही हाल हो गया है। अरे क्या यार, ऐसे क्यों हो रहा है? सबका ब्लैक आता है, इसका व्हाइट कैसे आ रहा है? इसका वाइट आ हाँ रहा है ना और सर। तिरछा आ रहा है। सर वाइट बोर्ड डायरेक्ट। हाँ ना अरे सर क्या ऐसे आ हो रहा रहा है है ये? सुबह भी क्या बहुत है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये किसका है? एम पटेल। तेरा ही है ना आमिर? हाँ हाँ सर। दोनों दोनों इमेज तेरी है। सुबह भेजा था ना, ये अभी का है। अरे हाँ हाँ, सुबह वाला है ना वो। ओके, ये अरे अभी का तो पूरा व्हाइट आ रहा है। हम्म। अरे मेरा बाप रे, बीच में सर मतलब वीडियो पीछे चल रहा था, ऑडियो सुनाई दे रहा था, मतलब ऑडियो आगे चल ऐसा रहा था। क्यों हो रहा है यार? हाँ सर मला तसं होत होतं. प्रॉब्लम किधर से है? तुम लोग सुबह ही बहुत सारा नेट यूज कर लेते हो क्या? नहीं अरे सर, सर वाईफाई है नहीं मेरा। सर। सुबह सुबह क्या? नहीं, सुबह तुम्हारा वो कॉलेज का भी लेते हैं ना, 12 बजे तक 1 बजे तक। हाँ सर। नाही सर एवढं नाही खात. हम्म. मग एक काम करा सगळ्यांनी, हे व्हा, परत रिक्वेस्ट पाठवा मला. ओके, आपण घेऊया हा हम्म, प्रॉब्लेम. सो यू सेंड मी द रिक्वेस्ट वन्स अगेन. ह्याच्यावरच पाठवाल ना, ओके काय सर। प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, सगळ्यांनी हाँ सर। पाठवा, सगळ्यांनी हाँ लॉग आउट व्हा हाँ। आणि मग नंतर परत पाठवा रिक्वेस्ट. तर काय आपल्याकडे तेच सोल्युशन. ज्यांना ज्यांना प्रॉब्लेम आहे त्यांनीच तसं करा. ज्यांना काय प्रॉब्लेम नाही त्यांनी काहीच करू नका. ओके. हा सर. हा, साक्षी तुला प्रॉब्लेम येतोय का? नाही माझं म्हणजे तुम्ही जे शिकवता ते कंटिन्यू दिसतंय, कंटिन्यू आवाज दिसतोय. ब्लॅक स्क्रीन वगैरे काय नाही. काहीतरी मग त्यांचंच नेटला प्रॉब्लेम आहे बहुतेक. हा सर, पावसामुळे होऊ शकतं. हा हा, पावसामुळे होऊ शकतं. राईट राईट, पावसामुळे होऊ सर शकतं. मला पण क्लिअर दिसते सर. अभी क्लिअर दिख रहे. स्वप्नीलला क्लिअर दिसत होतं. हा सर आधीपासून. ओके, म्हणजे सर स्वप्नीलला मला पण काय पण. प्रॉब्लेम? हाँ सर मला निखिलला प्रॉब्लेम होता ना? हा सर मला पण. नाही नाही सर मला पण. तुला पण दिसतंय, मग फक्त या दोघांनाच प्रॉब्लेम हा. होता. ओकेच, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. म्हणजे यांचं काहीतरी नेटचा इश्यू आहे थोडक्यात, बरोबर ना? हा. हा सर, ते कालपासून कंटिन्यू पाऊस चालू आहे ना, त्याच्यामुळे होत असेल. अरे आले काय आमिर? हाँ सर। तेरे को दिख रहा है अभी? हाँ सर अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है. रोहन किधर गया? रोहन, अरे रोहन को ऐड किया ना मैंने. रोहन किधर गया? सर आ रहा है शायद, आ गया सर आ गया। आ गया ना रोहन? रोहन, हेलो. हा दिसतंय का आता? रोहन, हाँ रोहन सर. दिसतंय का आता?
दिसतंय सर. दिसतंय ना? हा ठीक आहे. चला आपण हे प्रॉब्लेम घेऊन टाकूया. हा प्रॉब्लेम नीट बघा, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे. आपण काय डिस्कस करत होतो, इथे एक बॅटरी आहे. आता मी मराठीतनं सांगतो सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड व्हेरी वेल. सो दिस इज द बॅटरी. ओके, दिस इज ही आयडियल बॅटरी इथे, आणि या आयडियल बॅटरीच्या अक्रॉस ही वायर आहे, युनिफॉर्म वायर आहे. ओके, युनिफॉर्म वायर का म्हटले? बिकॉज द व्हॉट एव्हर द व्होल्टेज ड्रॉप दॅट इज हॅपनिंग फ्रॉम ए टू बी, इट इज युनिफॉर्मली. ओके, युनिफॉर्मली. असं नाही की कुठल्या लेंथ मध्ये जास्त व्होल्टेजचा ड्रॉप होतोय, कुठल्या लेंथ मध्ये कमी होतोय, असं काही नाहीये. तर इथे 6 व्होल्ट आहे. आपण हे बघितलं, इथं 0 आहे, तर इथं किती येईल? 6 व्होल्ट. हे आपलं पहिलं आन्सर झालं. ठीक आहे. आता आपण जसं या एंड पासून इकडे येणार आहे तसं व्होल्टेजचा ड्रॉप होणार आहे. आता आपण बॅलन्सिंग लेंथ बघायची, म्हणजे हा सी पॉईंट कुठल्या तरी डी पॉईंटला कनेक्ट करणार, तेव्हा बॅलन्सिंग लेंथ मिळणार. मग आता सी पॉईंटची इथे पोटेन्शियल किती आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागणार आहे पहिलं. ते कसं येणार? हे 6 व्होल्ट आहे, हे 4 व्होल्ट आहे, आणि आपण बी कडे सी कडे जाताना असं जाणार आहे. जेव्हा मी असं जाणार आहे तेव्हा 6 व्होल्ट करणं मी इकडे ही बॅटरी जर कन्सिडर केली तर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जावं लागते मला. म्हणजे काय करणार मी? 6 - 4 म्हणजे 2 व्होल्ट. आणि जेव्हा हा पॉइंट याला कनेक्ट नाहीये तेव्हा इथनं करंट जात नाहीये, इथनं करंटच जात नाहीये, म्हणजे इथे व्होल्टेजचा ड्रॉप नाही होते. ओके, सो 2 व्होल्ट आलं. सो हिअर ऑल्सो इट विल बी 2 व्होल्ट. सो VC विल बी इक्वल्स टू 2 व्होल्ट. तुम्हाला एवढं कळलं? एवढं कळलं? ए च्या इथं व्होल्टेज किती? 6 व्होल्ट. सी च्या इथं किती आलं? 2 व्होल्ट. आता आपल्याला काय करायचंय? हा पहिला प्रश्न झाला आपला कम्प्लीट. आता दुसरा प्रश्न काय आहे? ऍट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेन्शियल इज इक्वल्स टू पोटेन्शियल ऍट सी. आता आपल्याला बॅलन्सिंग लेंथ शोधायची. थोडक्यात बॅलन्सिंग लेंथ शोधण्याकरता आपल्याला माहिती आहे की या सी पॉइंटचं पोटेन्शियल किती आहे? 2 व्होल्ट आहे. सो इफ आय टच द वायर ऍट अ पॉइंट हुज पोटेन्शियल इज 2 व्होल्ट, म्हणजे ऑब्व्हियसली काय होईल? आपल्याला बॅलन्सिंग लेंथ मिळून जाईल. सो बॅलन्सिंग लेंथ तशा प्रकारे मिळण्यासाठी आपण काय केलं? आपण एक अज्युम केलं की बाबा आय एम गोइंग टू गेट द बॅलन्सिंग पॉइंट ऍट अ डिस्टन्स ऑफ एक्स फ्रॉम बी. सो जर मी हे डिस्टन्स एक्स मानलं तर हे इकडचं एडी किती असणार आहे? 100 - x. एडी असणार आहे 100 - x. नाव आय एम गोइंग टू यूज द सिंपल रूल. आपल्याला माहिती आहे की बीडी रिप्रेझेंट किती करते? 2 व्होल्ट. आणि टोटल एबी किती रिप्रेझेंट करते? 6 व्होल्ट. सो इफ आय राईट 2/6 which will be equals to काय असणार आहे मग? x/100. सो असं केलं तर मला x ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. So x will be equals to 2 × 100 divided by 6. So that is what? 200 divided by 6. So that is 33.33 सेंटीमीटर. आपको ये समझ में आया बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकाला मैंने? हाँ सर. हाँ, तर आपण इथे x ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. आता तुम्ही x चे डिस्टन्स कुठून आहे? बी पॉइंटच्या इकडून आहे. सो यू कॅन डिफाइन द पॉइंट डी. ओके, so point D you can define from the point B or from the point A. If you consider it from the point B, it will be what? 33.33 centimeter. If you consider it from the point A, it will be what? 66.67 centimeter. Clear? हे झालं तुमचं दुसरा आन्सर. बॅलन्सिंग लेंथ कुठे येणार? At which point D of the wire AB? So this we have calculated. That the point D is at a distance of 33 centimeter from B end and 66.67 centimeter from the A end. अभी C question देखो. If the point C and D are connected by the wire. आता मी काय केलं? हे दोन्ही पॉइंट आहे ना वायरनी कनेक्ट केले. आधी मी काय केलं होतं? C पॉइंट D ला डायरेक्ट कनेक्ट केलं होतं. आता मी एक वायर वापरली. आता मला माहिती आहे D पॉइंटचं व्होल्टेज किती आहे? 2 व्होल्ट. सी पॉइंटचं व्होल्टेज किती आहे? 2 व्होल्ट. आणि त्या दोघांच्या मध्ये मी काय केली आहे? वायर कनेक्ट केली. आता इकडे पण 2 व्होल्ट, इकडे पण 2 व्होल्ट. वायर मधनं करंट जाईल का? बोला. नाही जाणार. करंट विल नॉट पास. करंट विल बी 0. तुम्हाला माहिती आहे ना, फॉर द फ्लो ऑफ द करंट व्हॉट इज नेसेसरी? पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल मध्ये डिफरन्स असेल तरच करंट जातो. अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट नहीं जाएगा. तो यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं बचेगा तो करंट कैसे जाएगा? नहीं जाएगा. So your answer is what? Current through it is will be 0.
So that is your answer of the third question. ठीक है, अभी डी वाला देखो. If the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt, अभी देखो, अभी ये 6 volt था, ये ड्राइवर था. अभी ड्राइवर हमेशा ज्यादा रहता है इस बैटरी से, मैंने आपको पढ़ा है. लेकिन अभी हमने क्या किया, इस 4 वोल्ट को हटा के 7.5 वोल्ट कर दिया. अभी कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है. तो ये ज्यादा है. अगर अपन पोटेंशियल इधर का कंसीडर करेंगे तो ये तो 6 वोल्ट होगा, लेकिन यहां से जब अपन इधर आएंगे तो उस वक्त सी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 माइनस 7.5, यानी सी का वोल्टेज माइनस में हो जाएगा, -1.5 वोल्ट इतना हो जाएगा. यानी सी वोल्टेज ऑफ द सी पॉइंट will becomes negative because of that. देखो, if the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt battery, what would be the answers of the part A and B? A में क्या पूछा था कि भाई C का पोटेंशियल कितना होगा. A का तो उतना ही रहेगा 6 वोल्ट, लेकिन इसका 2 आया था अपना पहला आंसर. अभी कितना हो जाएगा, -1.5. अभी ये -1.5 आया तो बैलेंसिंग लेंथ आ सकता है क्या along the wire AB? अरे इधर किधर भी -1.5 नहीं है. सबसे कम वोल्टेज कौन सा है, 0. निगेटिव में वोल्टेज ही नहीं है और वायर ही नहीं है इधर. ओके, सो ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट एनी पॉइंट डी ऑन दिस वायर ए बी. वी आर नॉट गोइंग टू गेट. दैट इज द आंसर ऑफ द बी क्वेश्चन. ओके, एंड उन्होंने क्या, हाँ बस हो गया ना. फिर ए एंड बी के रिस्पेक्ट में ही पूछा है. आपको समझ में आ गया, फिर कळलं का तुम्हाला. हाँ सर. ओके, अरे लड़के लोग, तुमको समझ में आया है कि नहीं. अरे निखिल, हाँ कळलं का हाँ हाँ नाही. सर. झोप आली का काय. रोहन, आमिर, हाँ सर. समझ में आया कि नहीं. यस. ओके, एक काम करो, ये समझ में जो आया है. हेलो सर, हाँ बोलो. नाम लिखा. हाँ तेरा नाम लिख.